Namaskar to everybody. I hope my voice is clear to everyone. Yes, sir. Okay, ठीक. So we'll start now because it's already time. So today basically what we are going to do is we will try to understand the basic concepts of Kundalini Sadhana, and this will be the theoretical part today, because I thought we will divide it so that you can understand the thing, and maybe coming Sunday or next week we can do the full practical session of this, because there is a lot of misunderstanding about the sadhana, and a lot of misinformation also is there about Kundalini. So we will just discuss whether really it is a purely tantric sadhana or it is a yogic sadhana. So we'll just try to understand that today. So before we start, let me introduce you to myself. I am Dr. Santosh, and I am basically a yoga and naturopathy physician, and from last 30 years I am practicing and teaching this science basically. So, and regularly I conduct this workshops on Kundalini, and March last week we have again a practical session in Rajkot, where 7 days program is there on Kundalini Sadhana. So before we start the practice, we have to understand, because it is called Kundalini Yoga. So we'll just revise the basic part of what is yoga basically. So what is Kundalini Yoga? So Kundalini Yoga is basically the essence of all the parts of yoga. Like you know that there are two basic schools of yoga, which is called Pranasayam Yoga and Bhavana Yoga. Now Pranasayam Yoga is the yogic path in which you mainly practice pranayamas to control your breath, Pranasayam, and Bhavana is mainly Bhavana Pradhan, where you practice yoga mainly based on emotions. So Pranasayam Yoga and Bhavana Yoga. Now whichever path you follow, you will see that Pranasayam Yoga and Bhavana Yoga can be divided into two parts. Basically the external practices and internal practices, Bahirang Yoga and Antarang Yoga. So Bahirang Yoga of Ashtanga Yoga or Hatha Yoga or Kriya Yoga or Kundalini Yoga or any other path of yoga is one set of practices like Yam, Niyam, Asana, Pranayam and Pratyahara. But the Antarang Yoga of any path of yoga, Antarang Yoga basically of any path of yoga is Kundalini Sadhana basically. Your Dharana, Dhyan, Samadhi also can be called as Kundalini Sadhana, because if you talk about Dharana, if you talk about Dhyan, if you talk about Samadhi, everything is linked with the chakras, everything is linked with the nadis and their corresponding chakras. So we have to understand there are techniques in traditional tantric text also, which is one of the purest form of Kundalini Sadhana, but there are practices in yogic sadhana also, and yoga cannot be called as complete without the Kundalini Sadhana, because you practice asanas, you practice pranayamas, bandhas, mudras, kriyas, anything, whatever you do, everything like Shat Karmas are done to cleanse the nadis. It is always told that you have to purify your nadis before you do the asanas. Now, when you purify the nadis, its impact is there on the chakras. So, starting from the Shat Karmas or pranayam is prana, and prana flows through these energy channels which are called nadis again. And every asana has got two aspects, basically the aspect of concentration of physical point and the spiritual point of contact. So every asana has got a physical point of concentration and spiritual point of concentration. So you will see that everything, whatever I am telling right now, it is basically to strengthen the nadis, to purify the channels, and to strengthen and cleanse your chakras basically, to balance. Now the awakening is a very advanced practice, because awakening doesn't happen just by doing something unless and until you are
having previous birth, some karmas, you can say, because unless and until it is connected to you, it is not going to happen, and without proper guru, you cannot awaken the Kundalini. It is not at all possible. Now, there are different schools and different thoughts that where Kundalini is present. So before that, we will just see what is the meaning of, because there are two concepts always we talk about. One is Kundalini sadhana, another one is Kriya Yoga sadhana. Now, Kriya Yoga sadhana, basically, it is a basic practice of Kundalini sadhana. It is not as equal to Kundalini sadhana, and Kriya Yoga, basically, it prepares you for Kundalini sadhana. So what is Kriya Yoga? Tap Swadhyaya Ishwar Pranidhanani Kriya Yoga. So Tapa, that is your austerity. Now austerity in what? So just closing your eyes or just observation of certain things is not austerity basically. Austerity is you have to utilize your chakras, you have to utilize your body with the help of certain asanas and certain pranayamas. You have to purify the chakras. That is austerity. Unless and until you purify the chakras or the subtlest part of your sadhana, this tapa or tapasya cannot be achieved. Then Swadhyaya. Now, Swadhyaya is self-study. So, self-study of the scriptures or the yogic text, whatever will help you to improve your knowledge in Kundalini sadhana is one of the important things. Now, Ishwar Pranidhan. Now, Ishwar Pranidhan basically is the total surrenders of God, और जिसको कहा जाता है कि पूरी तरह से समर्पण. So, when you are totally samarpit to God, then that state is called Ishwar Pranidhan. So, Kriya Yoga is one of the stages which takes you to the Kundalini Yoga. Kriya Yoga एक basic foundation है जहाँ पर आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं आसनों से, प्राणायामों से, ताकि वो चक्रों पे उनका इम्पैक्ट हो. क्योंकि सिर्फ आंखें बंद करके आप शरीर पे यहाँ वहाँ कहीं पर ध्यान लगाते हैं तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, जब तक आप चक्रों को उनके साथ नहीं जोड़ते. क्योंकि साधना, जो भी योगिक साधना है, हर योगिक साधना का एक रिलेशनशिप है चक्रों के साथ. बिना चक्रों के योग को आप संपूर्ण नहीं कह सकते, या योग होगा ही नहीं, फिर वो कुछ और हो जाएगा. ठीक है. तो तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनका कॉम्बिनेशन जब होता है, तीनों को मिलाते हैं आप, और जब योगा क्रिया, दैट इज योर प्रैक्टिकल और प्रिलिमिनरी योगा, तो उसको हम क्रिया योग कहते हैं. क्रिया योग महर्षि पतंजलि ने भी एक्सप्लेन किया है, जिसको वो कहते हैं कि इन चीज़ों को अगर आप अपने शरीर में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, देन यू कैन प्रैक्टिस द हायर फॉर्म ऑफ योगा इन अ फॉर्म ऑफ अष्टांग योगा, जो एक्सप्लेन किया गया है. और दूसरा पार्ट है क्रिया योग, जो सिद्धों के बारे में है. सिद्ध, जो आपने 18 सिद्धों के बारे में सुना होगा, तो ये जो 18 सिद्ध हैं, ये एक्चुअल क्रिया योग जो कि कुंडलनी पे रिलेशन है पूरा का पूरा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुंडलनी साधना को हमको समझना जरूरी है, क्योंकि हर साधना जो भी हम करते हैं, जब भी हम तपस्या करते हैं, तो तपस्या से क्या होता है, आपकी काया और इंद्रियां, इन दोनों की शुद्धि होती है. इनके अंदर जो भी अशुद्धि है उनका क्षय होता है. काया और इंद्रियां, काया की शुद्धि के लिए आपको आसन करने पड़ेंगे, शुद्धता के लिए आपको षटकर्म करने पड़ेंगे, बंध मुद्राएं लगानी पड़ेंगी. इंद्रियों की शुद्धि के लिए आपको नाड़ियों की शुद्धि करनी पड़ेगी, चक्रों की साधना करनी पड़ेगी. अगर आप इन दोनों को नहीं करते हैं तो फिर आपकी तपस्या जो है वो पूर्ण नहीं होती है ना. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस एंगल को योग के समझें, क्योंकि जब तक हम इस एंगल को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश. तो ये अलग अलग क्लेश हैं जो आपको कंटिन्यूसली किसी न किसी रूप में एक दुख, संताप, जिसको कहा जाता है तकलीफ, जिसके चलते हम भटकते रहते हैं, ये मिलता रहता है शरीर को भी, मन को भी. तो इसीलिए हमें इनसे बाहर निकलने के लिए साधना जरूरी है, जो कि एक योग मार्ग है. क्योंकि एक योगी जो होता है वो केवल योगी होता है, वो ये नहीं कहता कि मैं
क्रिया योगी हूँ या मैं कुंडलिनी योगी हूँ, क्योंकि कुंडलिनी तो साधना है, एक एसेंस है, इट इज़ द मेन एसेंस ऑफ एनी योगिक पाथ। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसका रेफरेंस, क्योंकि साधना जो हम बात कर रहे हैं, कुंडलिनी साधना या योग साधना के बारे में, तो हु इज़ द आदि आचार्य ऑफ योग? योग के आदि आचार्य कौन है? तो आपके हिसाब से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो भी आप नाम लेना चाहें। महर्षि पतंजलि को भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि से पहले भी योग था और योग वासिष्ठ उससे पहले लिखा गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि योग काफ़ी पहले से, और योग के जनक जो हैं जिनको कहा जा सकता है वो है भगवान शंकर, आदिनाथ शिव। सो शिव जी ने शिव संहिता जो हमें दिया वो एक योगिक टेक्स्ट है, वो एक तांत्रिक टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इंडिया में, चाहे वो कैवल्य धाम हो, चाहे वो बिहार स्कूल ऑफ योग हो, चाहे वो चौखंबा हो, बहुत बड़े बड़े लोगों ने शिव संहिता टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और शिव संहिता में ये बताया गया कि कुंडलिनी साधना क्या है, और लोगों को मिसगाइड भी शिव साधना के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ तक हो रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है शिव साधना के अनुसार भगवान शंकर ये परमिट कर रहे हैं कि आप लेट के मेडिटेशन कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि साधना जो है वो बहुत ही इंटेंस साधना है। कुंडलिनी साधना इज नॉट दैट इजी दैट एनीबॉडी कैन डू। या फिर आप फेसबुक पे या कहीं पर भी पढ़ते होंगे कि यू कैन एनरोल फॉर शक्तिपात, और घर बैठे शक्तिपात हो जाती है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। भाई अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो कम से कम 18-20 घंटे की समाधि आपकी लगनी चाहिए, है ना। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी साधना जो है वो आपके चक्रों पे है और आपके चक्र ही आपके शरीर को संभाल रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और कुंडलिनी का मेन एम जो है वो क्या है? वो है आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना। कुंडलिनी का एम ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया और शक्तिपात हो गया तो बस हो गया। साधना ध्यान अगर नहीं लग पाता है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ कमी है। तो देखिए 4th चैप्टर जो है शिव संहिता का, उसमें 62वां श्लोक जो है वहां पर भगवान कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, क्योंकि ये श्लोक बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर ने रुद्राक्ष के बारे में एक्सप्लेन किया है। रुद्राक्ष नॉर्मली हम जो पहनते हैं रुद्राक्ष, उसके बारे में नहीं बात हो रही है यहाँ पर। दिस इज द प्लेस विच इज कॉल्ड रुद्राक्ष अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा, हु इज द आदि आचार्य। नाउ व्हाट ही सेज, a yogi has to meditate upon the cavity of the skull. Now what exactly is the location? आपका जो आइड्रो सेंटर है उसको एक सीधा लाइन लीजिए और दोनों कान के ऊपर का हाईएस्ट पीक्स का, मतलब कि एक पॉइंट इस तरह से होता है, दोनों क्रॉस होता है, और जो कैविटी होगी, जो पॉइंट होगा दोनों को क्रॉस करने के बाद, उस पॉइंट को वो रुद्राक्ष कहते हैं। एंड व्हाट ही सेज कि जब आप उस पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, अब मैं कुंडलिनी साधना की बात कर रहा हूं, और यहीं से हर चीज शुरू होती है साधना, चाहे वो क्रिया योग हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी हर साधना इनकम्प्लीट है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो भोलेनाथ कह रहे हैं, उनको तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। तो व्हाट ही सेज, व्हेन यू मेडिटेट, जब आप ध्यान इस पे लगाना शुरू करते हैं, तो ए ब्रिलियंट फ्लेम, गोल्डन फ्लेम वहां पर आपको दिखना शुरू होता है। एक सुनहरा फ्लेम, फ्लेम मतलब ज्योति, वो अपने आप प्रकट होता है। और अगर आप कुंडलिनी साधना आप करते होंगे या समझते होंगे, तो आज्ञा चक्र का लोकेशन आईब्रो सेंटर नहीं है, जो मैं आपको अभी रुद्राक्ष बता रहा हूं, ये है आज्ञा चक्र का एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहां पर ध्यान करने के लिए कहा गया। इतना याद रखिए कि जब भी आप इस रुद्राक्ष पे ध्यान लगाते हैं, जब भी आप इस रुद्राक्ष पे ध्यान लगाएंगे, तो इसमें इतनी ताकत है कि नीचे जितने भी चक्र हैं आपके, उनको पूरी तरह से वापस एक्टिवेट कर सकता है।
अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ी या फिर 51 लाख नाड़ियां हों, चाहे जो भी अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग नाम हैं, इन सभी नाड़ियों में जो प्राण वायु बह रही है उसको क्लेंस अगर करना है, उसको शुद्ध करना है और कहीं भी ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि ध्यान तब लगेगा जब इन नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा और अपने आप स्वतः ध्यान लग जाएगा। आपको कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष, जब शिव जी ने कहा कि आपको रुद्राक्ष पे ध्यान करना है तो उनसे बड़ा योगी तो है नहीं संसार में। उन्होंने कहा है कि वहां पर ध्यान करना है। कैसे करना है ये भी कहा, ये नहीं कि मतलब आंख बंद करके सीधे बैठना है सीधा चुपचाप। उन्होंने कहा है कि चलते फिरते, नींद में, सोते समय, खाते समय, सुबह शाम दोपहर रात में किसी भी टाइम पे वो ध्यान उसी जगह पे रहना चाहिए। मतलब मनसा वाचा कर्मणा तो है ही, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी ध्यान वहीं लगा रहे। अगर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, किसी भी हालत में उस रुद्राक्ष पे अपना ध्यान होना बहुत जरूरी है। अब आप बताइए कि इससे पहले आपने कभी ये सुना भी है शिव संहिता में, लेकिन लिखा हुआ है, और ये आज से नहीं लिखा है, जब से शिव जी रहे होंगे तब से तो लिखा है, क्योंकि उन्होंने दिया ये। और यहां पर क्या होता है, जब ध्यान की एक अवस्था आती है जहां पर पूरी तरह से साधक जो होता है उस ध्यान के उस प्रकाश में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो वो हायर कॉन्शियसनेस जो है उसके साथ कनेक्शन उसका बच जाता है। जो लोग सांख्य समझते हैं तो महत्तत्व जिसको कहा गया है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो शिव जी ने ये कहा कि आपको ध्यान ऐसे करना है। अब आप सोचिए, एक दिन की चीज नहीं है। अगर आज आप समझ रहे हैं और आप यहां आज ये सोचें कि आज से, अभी से मैं आई एम गोइंग टू मेडिटेट ऑन रुद्राक्ष। ओके, आप इनिशियली ओमकार को ही ले सकते हैं एक सिलेबल की तरह और एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ले सकते हैं उसको, और जो प्लेस होगा उस लोकेशन पे आप ध्यान करना शुरू करते हैं। तो वो जो फ्लेम है जिसके बारे में हम दिव्य ज्योत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ध्यान करने से हम हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो एक दिन, 2 दिन, 1-2 महीना, 4 महीने में तो आएगा नहीं। और जब इंटेंस साधना कहा उन्होंने, इंटेंस साधना का मतलब ये कहा कि सोते जागते अपना कोई भी काम आप कर रहे हैं तब उस समय आपको करना है हमेशा। मतलब आप सोच लीजिए कि उसको छोड़ के आपको ध्यान में कुछ नहीं रखना है। तो वो पोजीशन जब आती है और आपके पूर्व जो कर्म हैं आपके, जो इस समय साधना में ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे जब इस शक्ति से क्षय होना शुरू होंगे और आपका ध्यान लगना शुरू होगा, तब जाके आप उस अवस्था के पास पहुंचेंगे। तब भी उस अवस्था में पहुंचने में समय लगेगा। तो जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि 24 घंटा भी अगर आप ये कर पाते हैं तो आपकी फिजिकली, मेंटली आपके शरीर के अंदर एक थकावट होगी। तो उसमें शिव जी ने ये कहा 70वें श्लोक में कि उत्तान शयने भूमो सुप्त्वा ध्यायेत् चिन्ह निरंतरम। तो उन्होंने वहां कहा कि फॉर द सेक ऑफ ओवरकमिंग द फैटीग, मतलब कि अगर आप ये सब प्रोसेस कर रहे हैं, इतना ज्यादा इंटेंसली आप साधना कर रहे हैं, तो आपके शरीर में जो थकावट होगी उसको आपके शरीर पे वो बाधा ना बढ़े, इसलिए आप लेट जाइए। यहां पर उन्होंने शवासन का नाम नहीं लिया है, मिसगाइड मत होइएगा किसी से भी। और जिसको डाउट है वो शिव संहिता जरूर पढ़े, ठीक है। तो इतनी साधना, इस इंटेंसिटी के साथ साधना आप कर रहे हैं तो आप लेट जाइए, और लेटने के बाद आपको शवासन नहीं करना है। लेटने के बाद जिस पॉइंट पे आपका सिर, यहाँ पीछे का पार्ट, ऑक्सीपिटल पार्ट जो है वो जो टच कर रहा है जमीन के साथ, उसको ध्यान में रखिए और अपनी साधना को कंटिन्यू कीजिए। इतना ही कहा है। लेकिन आपको समझाया यह जाता है कि शिव संहिता में शवासन में लेट के साधना करने के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बहुत ही क्लियर कट लिखा है कि 62वें श्लोक में आपको रुद्राक्ष पे ध्यान लगाना है। 67, 68, 69 में कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये सारी चीजें बताई गई जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। और 70th में उन्होंने ये ऑप्शन आपको जरूर दिया कि आप अगर बहुत इंटेंसली कर रहे हैं, 20-22 घंटे साधना कर रहे हैं, और आपके शरीर में अगर थकावट आ जाती है, जो नेचुरली आएगी अगर आप सचमुच में साधना कर रहे हैं, तो आप लेट के उस साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसी साधना को, किसी और चीज को नहीं।
ये बहुत ही साफ क्लियर कट उन्होंने कहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे जहां पर भोलेनाथ ने ये कहा कि कुंडलिनी के बारे में क्या कहा, क्योंकि हमारा जो पूरा आज का सेशन है वो इसी से रिलेटेड है। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी कुंडलिनी से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए रुद्राक्ष सेम साधना पाद की तरह जैसे आप अगर पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें पहले उन्होंने समाधि पाद कहा, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, फिर साधना के बारे में बताया। तो यहाँ पर भी 4th चैप्टर में ये बता दिया कि क्या करना है। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि कुंडलिनी क्या है। तो उन्होंने कहा कि कुंडलिनी एक कंद में है, 3.5 times coiled. Now what is the meaning of 3.5 times coiled serpent? 3.5 times coiled serpent, तो 3.5 times coiled serpent के रूप में नहीं है। आप ये समझिए कि 3.5 मतलब आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और बिंदु जो आपको शून्य में लेके जाती हैं, इन तीनों को बांध के वो उस कंद में कुंडलिनी सुषुप्ति की अवस्था में है। लेकिन ये भी है, आज से नहीं सो रही हैं। आप ये मत सोचना कि अभी सडनली परसों या नरसों तक जगी हुई थी और अभी सो गई हो, ऐसा नहीं। जन्म जन्मांतरों से सोई हुई, और उनके इस अवस्था में उनको रहने देने का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम साधना नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम साधना, कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग साधना करने का दिखावा भी कर रहे हैं कि हम कुंडलिनी साधना कर रहे हैं हम, या कुछ भी जो भी है, बट देयर इज नो प्रॉपर टेक्निक जो है उसका वो सही नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि शिव संहिता वन ऑफ द ऑथेंटिक टेक्स्ट है, चाहे वो एक बेस है, चाहे वो योग साधना प्रॉपर हो, आसनों की तरह अगर आसन आप ले रहे हैं तो, या प्राणायाम ले रहे हैं तो, या फिर, लेकिन देखिए इस ग्रंथ में साफ साफ शिव जी ने जो भी कुछ कहा है वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए कहा है, और बहुत ही बड़ा चैप्टर है पूरा। वो चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जो आपको रुद्राक्ष साधना से ले जाकर कुंडलिनी साधना की तरफ लेके जाता है। तो कुंडलिनी साधना की तरफ अगर लेके जा रहा है तो आप ये सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को समझना भी। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया रुद्राक्ष पे ध्यान लगा के, फिर तो अभी हम अगर ये समझें कि कुंडलिनी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहाँ पर है ये, तो ये कंद जो है इसको कहा गया है आपके मूल में, हिंदी में जैसे अगर कहा जाता है, इंग्लिश में अगर इसको समझना है एनाटॉमिकल पोजीशन जो है तो इसको कहा जाता है पेरिनियम। Now what is perineum? It is the triangular area which is present in between your anus and genitals. पेरिनियल बॉडी है वहां पर जो, और ये लोकेशन जो है आपके स्पाइन के एरिया में ही है। तो हर कुछ स्पाइन में ही हो रहा है, सामने से उसके सिर्फ पिक्चर्स आपको देख सकते हैं, या फिर वो एक और आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा चक्रा का जो सिस्टम है वो आपके स्पाइनल एरिया में ही है। ठीक है, अब ये कंद है, तो अब क्या करेंगे हम, कुछ चक्रों के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेंगे। तो क्योंकि नॉर्मली हमको ये लगता है कि हाँ भाई कौन से चक्र को इम्बैलेंस अगर है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मूलाधार चक्र अगर आपका इम्बैलेंस है, मूलाधार चक्र जो कि पेरिनियल बॉडी भी जिसको मैंने अभी बताया आपको, तो मूलाधार चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आपके बॉडी के अंदर पेनफुल कंडीशंस बहुत ही कॉमन होंगी, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या जॉइंट पेन्स, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का या एक्सेप्ट करने की चीज़ें इसमें बॉडी के अंदर कम होंगी। ब्लड फ्लो में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस की अवस्था में है। अब देखिए स्वादिष्ठान चक्र उससे ऊपर है 2 इंच 2 अंगुल, और स्वादिष्ठान चक्र का एग्जैक्ट लोकेशन है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस
एट द लेवल ऑफ द स्पाइन। तो है सब कुछ स्पाइन में, लेकिन प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सा एरिया है? जो हमारे जेनाइटल्स का एरिया है। तो वहाँ पर स्पाइन में आपके रीढ़ की हड्डी में स्वादिष्ठान चक्र है। तो स्वादिष्ठान चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स मतलब ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है, यूरेटर्स में प्रॉब्लम हो सकता है, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके अंदर इम्पोटेंसी हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आप देखेंगे कि अगर आपके स्वादिष्ठान में प्रॉब्लम हुई तो आपके यूरिनरी ब्लैडर में और सेक्सुअल ऑर्गन्स में कोई ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि इसका रिलेशनशिप ऊपर वाले चक्रों से। फिर अब देखिए मणिपुर चक्र जो नेवल सेंटर में है। अब नेवल सेंटर आपके स्पाइन के लेवल पे ही है ये चक्र भी। तो अगर मणिपुर चक्र में इम्बैलेंस हुआ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन हुआ, इंडाइजेशन हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स हो सकते हैं, कोलाइटिस हो सकता है। तो इतना समझ लीजिए कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो मणिपुर चक्र भी इम्बैलेंस, इसका अर्थ है कि मणिपुर चक्र आपका नॉर्मल नहीं है अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हैं तो। अनाहत चक्र का रिलेशनशिप सीधे आपके हार्ट और लंग्स से है। तो लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट एलिमेंट्स, कुछ भी इस तरह की परेशानी है आपको, तो आपका अनाहत चक्र इम्बैलेंस है। जो कि कुंडलिनी साधना हम जब नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक में जो प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तब आपको समझ में आएगा कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र आपको पता है, विशुद्धि चक्र थ्रोट सेंटर का आ गया है। तो यहाँ पर आपका थायराइड, पैराथायराइड, ट्रेकिया और उससे रिलेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें कोई भी बीमारी अगर है तो इसका अर्थ है कि आपका विशुद्धि इम्बैलेंस है। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि देखिए आज्ञा चक्र मैंने आपको बताया रुद्राक्ष का एक दूसरा नाम भी है, त्रिनेत्र भी इसको कहा जाता है। तो फिजियोलॉजिकली अगर आज्ञा चक्र में इम्बैलेंस है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। आप देखेंगे कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपका आज्ञा इम्बैलेंस है तो कैंसर कहीं भी शुरू हो सकता है। तो आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। और सहस्रार चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि हायर मेंटल फंक्शंस, जैसे मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनमें उनका सहस्रार चक्र इम्बैलेंस होता है। आप देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगी अगर सहस्रार चक्र इम्बैलेंस होगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। तो ये मैंने आज अभी जो आपको बताया ये फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं हैं। स्पिरिचुअल चीज़ें जो मेरा एक्चुअल वर्कशॉप होता है जिसमें हम एक एक चक्र को एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं पूरा, उनके बीज मंत्र और उप बीज मंत्रों के साथ। तो उनके अलग अलग इफेक्ट्स को हम पढ़ते हैं और फिर उनका कोरिलेशन इन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे है वो आपको समझाते हैं। तो ये हो गया आपका इन ब्रीफ की क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए दूसरा एक चीज़ और समझना है कि अगर आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र के साथ में सोलर प्लेक्सस भी आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जब भी हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं उस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि इमोशंस के साथ में आपका पेट काफ़ी रिलेटेड रहता है। जैसे पेट रिलेटेड रहता है वैसे ही इमोशंस के साथ आपका हार्ट भी रिलेटेड रहता है। तो बेसिकली जब हम स्कैन करते हैं कुंडलिनी साधना में, चक्रों को स्कैन किया जाता है जब, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे और चक्रों का भी होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको अगर कोई हाइपरटेंशन है तो सिर्फ आपका अनाहत चक्र ही इम्बैलेंस होगा, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है 2-3 और चक्रों का। और इन चक्रों को जब तक आप शुद्ध नहीं करते हैं तब तक आप दुनिया भर की दवाई खाते रहिए, दुनिया भर के वर्कशॉप्स अटेंड करते रहिए, वो ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक फिजिशियन हूँ और इस प्रैक्टिस के साथ में पिछले 25-30 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है।
तो मुझे लगता है कि इन ब्रीफ जो मुझे बताना था आपको, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा जो है कुंडलिनी साधना के बारे में, वो मैंने आप लोगों को समझाया, बताया। अब लास्ट 4-5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, और नहीं तो आप अगर जैसे कट जाता है, आई थिंक आफ्टर 40 मिनट्स ये कट जाएगा, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मैसेज मी। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रैक्टिस द नेक्स्ट पार्ट, द प्रैक्टिकल पार्ट, बिकॉज विदाउट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, या अगर मैं आपको प्रैक्टिकल में बोलूँ कि रुद्राक्ष पे ध्यान लगाइए तो आप कहाँ लगाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए दिस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। आई डोंट थिंक इसमें डाउट वाला कुछ है, इट इज जस्ट टू एनहांस द नॉलेज व्हाट वी हैव। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? सर, हाँ, नाम बताइए अपना। सर, हाँ बताइए। सर, actually I am suffering through chronic anxiety. But since 20 years, every issue is going wrong way. After some struggling, sometimes I will get results, sometimes I will lose some my confidence, money, everything. Okay. It's a major issue.